Hello students, कैसे हैं आप सब? Hope you are doing wonderful. Let's maintain the same pace of studying and learning which we are doing for almost 10 days. In the same series of coordination, I am here with the same topic, that is tense, but today we have to go through present indefinite tense. Till now we have already discussed that what is the difference between time and tense and what is tense, and today we are going to discuss features or say identification of present indefinite tense. Okay, so let's start with the identification of present indefinite tense. ठीक है, students, I have to tell you that today I can use both the languages, Hindi and English, because I want you all to understand this in a better way. Okay, so I don't want any stone unturned in getting this, that you there is a language part that you couldn't get that just because of language part. So I want you all to understand this in a very good way. Okay, so let's kick off the topic. Identification of present indefinite tense. आप कैसे पहचानोगे? How will you recognize present indefinite tense that this is present indefinite tense? किस किस सिचुएशन में हम इसे यूज कर सकते हैं? ठीक है, in what situation we have to use this tense? किस किस सिचुएशन? तो पहला हमारा क्या दिया? What is given? First point is given is that to express routine actions, to express the routines, whatever is our routine, हमारी जो भी routines होती है, like we brush at 4, firstly we get up at 5 o'clock, then we brush our teeth, then we go to bath, then we study, then we have breakfast, okay, like this. So these are our routines. Like example is also given over here that he completes his homework in the morning. So it is a habit, it is his habit that he completes his homework in the morning. So morning में इसकी काम करने की आदत है, it is his routine. Second example what is given? I operate my computer at 6 sharp. वो ठीक 6 बजे मैं ठीक 6 बजे मैं कंप्यूटर ऑपरेट करती हूँ या चलाती हूँ. ठीक है, ये मेरी हैबिट है, ये मेरी रूटीन है, ये मेरा रूटीन है, ये मैंने रूटीन बना रखा है. ठीक है, तो ये मेरा रूटीन एक्शन है. ठीक है, एक रूटीन और आदत होने में डिफरेंस होता है. देयर इज डिफरेंस बिटवीन रूटीन एंड हैबिट. ठीक है, तो रूटीन क्या होती है? मैंने बनाई है कुछ काम करने, और कुछ चीज़ें क्या होती है? हमारी आदत होती है करने की. लाइक वो हमेशा बात करती रहती है, या फिर वो हमेशा क्लास में लेट आता है. ही ऑलवेज कम्स लेट, ही ऑलवेज टॉक्स अ लॉट इन द क्लास. So these are our habit, and routine is what we make that we have to do this on a daily basis. That is called routine. Okay. Next point, I think this one will be clear to you. Okay. So to express routine actions, we have to use present indefinite tense. So here we have used he completes, I operate. Okay. To express routine actions, we have to use present indefinite tense or say simple present tense. नेक्स्ट टॉपिक इज गिवन दैट टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस, जो हमारी हैबिट्स होती हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए, लाइक हम ये करते हैं वो करते हैं, तो क्या है, हम कैसे बता रहे हैं? हम इसको इसी वे में बता रहे हैं ना. दैट टू एक्सप्रेस हैबिट्स, शी ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा क्लास में लेट आती है, उसकी हैबिट है, इट्स हर हैबिट दैट शी ऑलवेज कम्स लेट. ही नेवर कम्स ऑन टाइम, वो कभी टाइम पे नहीं आता है, ये भी उसकी हैबिट है. ठीक है, तो हैबिट्स को भी कैसे बता रहे हैं? इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, वी कैन एक्सप्रेस these habitual actions in present indefinite tense. तो हम रूटीन एक्शन को बता रहे हैं, हैबिचुअल एक्शन जो हमने रूटीन बना रखी है डेली की, उसको हम बता रहे हैं. हम अपने हैबिचुअल एक्शंस को भी इसी में बता रहे हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं उसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं, वो दैट्स इन आवर ब्लड, दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप दैट थिंग. ठीक है, शी कम्स लेट जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन, दैट इज हर हैबिट टू गेट अप late, that's why she comes late also. Okay, so habit and routine that we have to express in present indefinite. Next third topic is given that to express universal or general truth. What is universal or general truth? In Hindi it is called सार्वकालिक तथ्य. Okay, या सत्य. ये होते हैं facts जिन्हें हम change नहीं कर सकते. These are the facts what we can't change. That's not in our hand. Okay, milk is white. अब milk white ही होगा, वो काला नहीं हो सकता. ठीक है, वो किसी और कलर का नहीं हो सकता है. सो दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ दैट वी कैन नॉट चेंज. द कलर ऑफ आवर ब्लड इज रेड, दैट इज ऑल्सो फैक्ट दैट कैन नॉट बी चेंज. दैट कैन नॉट बी ऑफ ब्लू कलर, दैट कैन नॉट बी ऑफ रेड वाइट कलर, दैट कैन नॉट बी चेंज. ओके, तो हमारे ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है ना, और मिल्क भी क्या होता है? वाइट होता है. इसे हम चेंज नहीं कर सकते. तो ये हमारे क्या है? यूनिवर्सल और
जनरल ट्रुथ है, ये हमारे जनरल ट्रुथ में आता है, ठीक है। मिल्क इज़ वाइट, दैट इज जनरल ट्रुथ, सामान्य फैक्ट है ये, ठीक है, इट्स जनरल फैक्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसको कोई रोक नहीं सकता है, इट हैज़ बीन हैपनिंग, ओके, सिंस सो लॉन्ग एंड इट विल बी हैपनिंग एंड इट हैपन्स, ये होता आ रहा है और ये होता है और ये होता रहेगा। इट कैन नॉट बी सॉल्व बाय एनीवन, इट्स नॉट इन एनीवन्स हैंड, ठीक है। जो चीज़ें हम नहीं रोक सकते हैं, और ये भी क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको नहीं रोका जा सकता, ये चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कि फैक्ट है जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो कि होते आ रहे हैं और होते रहेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। Let's move towards our fourth point, that is to express planned future decision. Whatever is planned for future and that is firm, that is certain, that will certainly happen, ठीक है। हमारे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं फॉर फ्यूचर्स, ठीक है, जो कि डिटरमाइंड होते हैं, दैट वी कैन नॉट चेंज, दैट विल हैपन एट एनी कॉस्ट, उनको भी हम कैसे बोलेंगे, दैट विल ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट डिफरेंट टेंस, like the plane takes off at 10 a.m. She gets married next year. So there we can see the certainty. Here we can see the determination that plane will take off at 10 a.m. हम इसमें क्या बता रहे हैं, फ्यूचर को भी इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, सॉरी फ्यूचर को ही इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे सर्टेन टाइमिंग है, देयर इज टाइमिंग इज सर्टेन दैट 10 a.m. At 10 a.m. only the plane has to take off. प्लेन टेक ऑफ करेगा 10 बजे, सॉरी, ठीक है, 10 बजे ही टेक ऑफ करता है, और ये प्लान्ड फ्यूचर डिसीजन है, ये चेंज नहीं होगा, ये फर्म है, फर्म मीन्स दृढ़ डिसीजन है, निर्णय। जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो क्या है, वो प्लान्ड है, ये चेंज नहीं होंगे। तो जो फ्यूचर प्लान्ड डिसीजंस होते हैं उनको भी किस में कन्वे करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। शी गेट्स मैरिड नेक्स्ट ईयर मीन्स एट एनी कॉस्ट she is going to get married next year. It also conveys a future decision. We can also say this message in future tense also, future indefinite, that she will get married next year. But we are expressing this statement or sentence in present definite tense, ठीक है। तो इससे भी क्या कन्वे हो रहा है, इससे भी हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो डिसीजन है वो फ्यूचर का है। जैसे मैंने आपको टाइम एंड टेंस में डिफरेंस बताया था, यहाँ पे आपका टाइमिंग क्या दिया है, फ्यूचर, नेक्स्ट ईयर, और टेंस कौन सा यूज़ हो रहा है, विच टेंस, प्रेजेंट डिफरेंट टेंस। सो दैट इज़ अ डिफरेंस कि हम टेंस कोई और यूज़ कर रहे हैं और टाइम कोई और यूज़ कर रहे हैं। रेफरेंस किस चीज़ का मिल रहा है, फ्यूचर रेफरेंस मिल रहा है इसमें। सो दैट इज़ अ डिफरेंस कि हम फ्यूचर रेफरेंस की बात करें, टाइमिंग हमारा फ्यूचर और टेंस हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। और ऑल इन ऑल हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ज़रूरी हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करें तो टाइमिंग भी प्रेजेंट की होगी, प्रेजेंट टाइम की ही बातें करेंगे, नो। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू दीज आइडेंटिफिकेशन। दैट इज़ नॉट ओनली वन आइडेंटिफिकेशन, देयर यू कैन गेट मोर देन 10 आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट डिफरेंट टेंस, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 4 पढ़ लिया, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे हमें फ्यूचर प्लानिंग की बात करते हैं कि अगर हमारा स्कूल, मान लीजिए हमने डिसाइड किया कि हमारा स्कूल जून में खुलेगा, ठीक है, हमने फ्यूचर में ये बात बोली, आई स्पोक दिस इन फ्यूचर टेंस, बट इफ़ आई से इट इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट डिफरेंट टेंस, यस इट इज़ पॉसिबल दैट आवर स्कूल रीओपन्स इन जून, ठीक है। तो ये हमारा क्या रीओपन्स, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, रीओपन्स हमारा प्रेजेंट डिफरेंट कर रहा है और इन जून हमारा फ्यूचर टाइम इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ वी हैव टू से आवर सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर टाइम इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से फ्यूचर टाइम की बात को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज़ पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू एक्सप्रेस पोजेशन और ओनरशिप का, ठीक है। हम किसी ओनरशिप की बात करें, हम किसी चीज़ को ओन कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को पजेस कर रहे हैं, हमारा किसी चीज़ पे अधिकार है, ठीक है। तो हम उसको कैसे कन्वे करेंगे, उसमें जो भी वर्ब यूज़ होंगे वो कैसे यूज़ होंगे, वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लाइक आई विल नॉट से दैट आई एम हैविंग अ कार, आई एम हैविंग अ पेन, नॉट लाइक दिस, आई हैव अ कार। इसमें क्या शो हो रहा है, पोजीशन, ओनरशिप, कौन ओन कर रहा है इसको, ठीक है, कि इसमें मालिकाना हक किसका है,
कौन पजेस कर रहा है इसको? शी होल्ड्स अ पावरफुल पोस्ट। हम ये नहीं कहेंगे शी इज होल्डिंग अ पावरफुल पोस्ट, ठीक है। शी होल्ड्स अ पावरफुल पोस्ट यानी वो बहुत ही पावरफुल पोस्ट को होल्ड करती है, उसके पास बहुत पावरफुल पोस्ट है, ये भी उसकी ओनरशिप है, ये उसका पोजीशन है पावरफुल पोस्ट पे। ये क्या शो कर रहा है? होल्ड्स पोजीशन ओवर समथिंग, ठीक है। तो हम जब पोजीशन और ओनरशिप की बात करते हैं, हम ऐसे भी कहते हैं ना कि शी बिलोंग्स टू वाराणसी, ठीक है। तो उसका पोजीशन किस पे है? वाराणसी पर, ठीक है। यानी वो वाराणसी को बिलोंग कर रही है। होल्ड्स, बिलोंग्स, ओन्स, हैव, हैज़, ये सारे में पोजीशन को शो करने वाले वर्ब्स हैं और इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कभी नहीं यूज़ करेंगे, दैट विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग। और हैव आपका यूज़ हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस में हो सकता है, बट नॉट इन केस ऑफ पोजीशन। पोजीशन जब आपको शो करना होगा तब आप इसको हैविंग नहीं यूज़ करोगे, ठीक है। हैविंग यूज़ होता है बट देयर इज अ कंडीशन, व्हेन यू आर हैविंग ब्रेकफास्ट, व्हेन यू आर हैविंग लंच, ठीक है। जब आप लंच ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हो, लेने की बात कर रहे हो लंच ब्रेकफास्ट, तो आप हैविंग यूज़ करोगे। लेकिन यहाँ पे पोजीशन की बात नहीं हो रही है कि आपके पास कोई चीज़ है, आपके पास कोई मालिकाना बात हो रही है। लेकिन जब आप कुछ खा पी रहे हो लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर लाइक दिस, तो आप उस केस में हैविंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ हाउ यू हैव टू यूज़ हैव। डिफरेंस है ना यहाँ पे पोजीशन एंड ओनरशिप, ठीक है। इज दैट क्लियर? आई थिंक इट विल बी। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज नॉट लास्ट वन बट सिक्स्थ पॉइंट इज टू एक्सप्रेस हिस्टोरिकल इवेंट्स और फैक्ट, ठीक है। अब तक आप लोग जब हिस्ट्री में पढ़ते हो, वेन एवर यू रीड एनी स्टेटमेंट इन हिस्ट्री, सो यू विल फाइंड दैट देयर विल बी गिवन इन पास्ट एंड डेफिनेट टेंस दैट ही डाइड इन दिस, the battle began like this, okay. But in historical facts, जब हम facts की बात करते हैं, so in facts we can write in present indefinite tense like India becomes free in 1947, ठीक है। The battle of Panipat begins, ठीक है। तो जो historical facts हैं हमारे, that can also be written in present indefinite tense like begins, becomes, ठीक है। Always keep in mind it is not necessary that you have to write historical facts in past indefinite tense only. You can use present indefinite tense also. आप present indefinite tense भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ past indefinite tense नहीं होगा, past indefinite यूज़ हो सकता है, लेकिन हम present indefinite tense भी यूज़ करते हैं to convey historical facts. Clear? I hope you would have got this much. Let's move towards our next point, that is 7th point, to express quotations, ठीक है। हम quotation को convey करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? present indefinite tense यूज़ करते हैं। To express quotation we use present indefinite tense like Keats says beauty is to see not to touch। अब यहाँ पे जो मेरा ये यूज़ हुआ है, हम ये नहीं कह रहे that Keats has died, so we will say that Keats spoke या Keats said, कीट्स ने कहा था। नो, हम ये भी कहेंगे ना कोटेशन है। कीट्स क्या कहते हैं? कीट्स कहते हैं कि ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच, ठीक है। लिंकन सेज ही हैज आल्सो डाइड बट वी डू नॉट से दैट लिंकन सेड। लिंकन सेज, लिंकन कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। क्लियर? तो जब हम कोटेशन की बात करते हैं, ये कोई इंसान अगर डेड है, उसकी कुछ कोटेशंस हम बता रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी कोटेशन और एनी पर्सन हु इज डाइड, ओके, हु इज नो, ज़रूरी नहीं कि हम उसको सेड बोलें या फिर उसने ये कहा था या ये, ठीक है। हम उसको किस में कहेंगे? हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहेंगे। वी विल कन्वे हिज और हर मैसेज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लाइक हियर आई हैव रिटन हियर कीप सेज नॉट सेड, सेड विल बी रॉन्ग हियर, ठीक है। हमें क्या बोलना है? वी हैव टू से कीप सेज ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच। लिंकन सेज, ओके, वर्ड्सवर्थ सेज, शेक्सपियर सेज, ठीक है। कोटेशन विल ऑल्सो बी कन्वे इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। I am talking about this one, okay. Now our next topic point is to express commentary or series of events. This is very important. See, जब हम किसी कमेंट्री की बात करें या फिर कोई सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहा है कॉन्टिन्यूसली वन आफ्टर वन होता जा रहा है, ठीक है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, तो हम कैसे बोलेंगे? समथिंग इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, सम इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस इन फ्रंट ऑफ आवर आइज,
सो इफ़ वी हैव टू से, सो हाउ विल वी से, हम कैसे कहेंगे, हाउ विल वी से। अब ये होता है, इसके बाद ये होता है, लाइक किसी का बर्थडे या फिर कोई भी चीज़ हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि अब वो एंटर करते हैं, इसके बाद वो रिबन काटते हैं, उसके बाद वो अपने सीट पे बैठते हैं, नाउ ही सिट्स ऑन हिज सीट। ठीक है, तो हम ऐसे कमेंट्री अगर कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, या फिर हम किसी ड्रामा की कमेंट्री कर रहे हैं, ठीक है, किसी प्रोग्राम की, तो इट विल बी लाइक दैट बिकॉज देयर इज अ कॉन्टिन्यूशन ऑफ सीरीज। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं बेसिकली यू विल फाइंड दिस इन कमेंट्री ऑफ क्रिकेट, लाइक आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ क्रिकेट कमेंट्री, लाइक कोहली बैट्स 4 रन्स हियर, कोहली ने कितने 4 और रन बनाए। ठीक है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कोहली बैग्ड नहीं बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूशन ऑफ इवेंट्स है, सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो होता जा रहा है। ठीक है, बैग्ड नहीं बोलना है, क्या बोलना है, बैग्स, वी हैव टू से बैग्स, दैट कोहली बैग्स 4 रन्स मोर। नाउ अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिया है जो कि कॉन्टिन्यूशन आपका शो कर रहा है किसी भी सीरीज में। ठीक है, आप कभी भी क्रिकेट की कमेंट्री सुनोगे, इफ यू लिसन एनी क्रिकेट कमेंट्री, सो यू विल गेट लाइक दिस, दैट Kapil their balls to Richard hits the ball hard, but Sunil stops it and throws it to Kirmani, and there is no run. ठीक है, everywhere you will find present infinite, Kapil their balls, Richard hit करते हैं बॉल को जोर से, and then Sunil stops it, सुनील उस बॉल को रोकते हैं, and throws to Kirmani, और किरमानी की तरफ फेंकते हैं, and there is no run, और कोई रन नहीं बनता है। ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन है वहाँ पे, तो हम कैसे बोलेंगे, ऐसी चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे, राइट। एंड टू एक्सप्रेस सबॉर्डिनेट क्लॉज, अब देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आई विल टीच यू क्लॉज, बट बिफोर दैट हियर इट इज़ गिवन एज इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रेजेंट डिफरेंस, सो आई हैव टू मेक इट क्लियर। ठीक है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसको समझने की कोशिश करिएगा गाइस, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप समझ जाते हो थोड़ा भी, तो दैट विल बी हेल्पफुल इन फ्यूचर। Okay, basically it is a part of clause, but it is also the part of present difference, because here in this condition we have to use, so I'll have to teach you. Okay, so to express a subordinate clause, अब subordinate clause क्या होता है ये आपको पता होगा कि होगा, I don't know। देखिए subordinate हमारे clauses जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, हम आपको वो बता देते हैं बेसिकली। ठीक है, एक होता है हमारा प्रिंसिपल, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा सबॉर्डिनेट। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, अगर हम किसी सेंटेंस में 2 पार्ट पाते हैं, ठीक है, लाइक अगर हम इसी को ले लेते हैं, चलिए आई शैल स्टे हियर, मैं यहाँ रुकूंगी टिल यू कम बैक, जब तक कि तुम वापस नहीं आ जाते। ठीक है, जब तक तुम वापस आओगे तब तक हम यहाँ रुकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आई शैल स्टे हियर, हम यहाँ पे रुकेंगे, मैं यहाँ पे रुकूंगी, इस सेंटेंस की मीनिंग ये, लेकिन अब यहाँ पे सेंटेंस में क्या है, टिल यू कम बैक, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते। ठीक है, जब तक तुम वापस आओगे तब तक हम यहाँ पे रुकेंगे। तो ये क्या है, ये सेंटेंस तो हमने कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस का क्या है, ये सेंटेंस इस सेंटेंस पे डिपेंड है। तो जो डिपेंड सेंटेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, सबॉर्डिनेट क्लॉज कहलाता है, और जो इंडिपेंडेंट होता है, जिसको किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं होती, वो हमारा प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, ये पूरा एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हमें 2 पार्ट्स मिले हैं, जिसमें एक प्रिंसिपल एक सबॉर्डिनेट है। प्रिंसिपल वो है जिसको दूसरे सेंटेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, और सबॉर्डिनेट हमारा कौन सा है, जिसको पहले सेंटेंस की ज़रूरत है अपने सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा मिला के 2 क्लॉजेस को मिला के मेरा पूरा एक सेंटेंस बना है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है इसमें कैसे हम करेंगे प्रेजेंट डिफरेंस, सबॉर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम। ठीक है, जो टिल होता है हमारा ये टाइम कन्वे कर रहा है। ठीक है, टिल जब तक तुम नहीं आते, तो ये टाइम बता रहा है ना, जब तक, तो कोई टाइम होगा। एंड कंडीशन, ठीक है, कंडीशन क्या होती है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, इफ इट रेन्स आई टेक एम्ब्रेला। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन हो गया, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी लाइक दिस, दीज आर द कंडीशंस। ठीक है, एंड कंडीशन इंट्रोड्यूस्ड बाय इफ टिल, so if the sentence is introduced by if till when in a conditional sentences, तो ये हमारा क्या है, these are called conditional sentences। इन conditional sentences में अगर आपका sentence जो है, जो आपका clause है, if the clause is starting with when till if, in that condition we have to use
प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। तो उसी सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। लाइक हियर टिल, वेयर द क्लॉज इज स्टार्टिंग विथ टिल, in that clause you have to use present definite tense. Okay, in principle future indefinite tense is used, you can see, ठीक है, प्रिंसिपल में आपका क्या यूज हुआ है, फ्यूचर यूज हुआ है। लेकिन if we talk about subordinate clause, in subordinate clause our clause is starting with till word, so in that condition we have to use present indefinite tense in subordinate clause if that is conditional sentence. Let's see another sentence. When you reach here, ठीक है, when, here principle is starting with when you reach here, send me a letter. Here this one is subordinate because it is starting with this word. Okay, this is the word, that is why we have to consider this subordinate clause, and this is the principle, because here it doesn't need any other clause to make the sense complete. It is itself completed, and here it needs another clause to make a complete sense and to form a sentence or to form a meaningful sentence. Okay, when you reach, when is used here, so in that condition जब आपका when यूज हो गया तो यहाँ पर क्या यूज करोगे, you will use present definite tense. Okay, I think this much is sufficient, and further if we want any explanation, so we will read in clause. Now next one is to express newspaper headlines. Okay, आप जब भी न्यूज़पेपर रीड करते होगे, whenever you are reading newspaper, you will find that when headlines are given, so that you will find in present definite tense. ठीक है, here you can see that extremist kill 50. ठीक है, ये चीज़ बीत चुकी है, it has happened in the past, पास्ट में हो चुका है, फिर भी हम क्या फिर कौन सा टेंस यूज़ कर रहे हैं, even then we are using present definite tense even if the incident has happened in the past. Okay, like extremists kill 50, जो आतंकवादी थे वो 50 लोगों को मार दिया उन्होंने, ठीक है, मार दिया, पास्ट की बात है ये, इट इज ऑल अबाउट पास्ट, बट इवन देन इट हैज बीन टोल्ड इन, इट हैज बीन रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. नेक्स्ट इज मिस्टर पटेल रिजाइन, मिस्टर पटेल ने रिजाइन कर दिया पास्ट, बट फिर भी न्यूज़पेपर का पार्ट ऑफ इन दैट कंडीशन वी हैव टू राइट इट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. नेक्स्ट वन इज एनटीपीसी का सप्लाई, एनटीपीसी ने सप्लाई कट कर दी, ठीक है, हटा दी, ये भी पास्ट का पार्ट है, इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पास्ट इन दैट कंडीशन वी हैव टू यूज हियर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. दिस बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर हेडलाइन. डॉक्टर कलाम टेक्स ओथ, तो डॉक्टर कलाम ने क्या किया, ही टुक ओथ, इट इज ऑल अबाउट पास्ट इंसिडेंट, बट इवन वी हैव रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर हेडलाइन. Okay, so guys, hopefully this is a complete topic which I try to explain with the best of my effort, which will help you for better understanding. In my next video I will tell you the structure, how will you use present definite tense, which form of the verb you have to use in present definite tense. Okay, so thank you so much for giving me your precious time. Thank you so much.